Hi guys, I am Harleen from Officer's Mind. As you all know कि CDS1 2024 का एग्ज़ाम अप्रैल 21 को है तो ऑलमोस्ट एक महीना रह गया है. I'll share with you the exam strategy to score more than 75 marks in English section. So let's get started. तो सबसे पहले तो एग्ज़ाम पैटर्न क्या है आपके पेपर का. सो टोटल ड्यूरेशन वुड बी 2 hours. क्वेश्चंस आपको टोटल 120 पूछे जाएंगे. टोटल मार्क्स 100 मार्क्स और आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी, दैट इज़ 1/3 नेगेटिव मार्किंग. सो दिस इज़ योर पैटर्न फॉर इंग्लिश पेपर. मूविंग टू द टॉपिक्स जो एग्ज़ाम में आते हैं, दीज आर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, स्पॉटिंग द एरर्स, fill in the blanks, synonyms and antonyms, idioms and phrases, sentence rearrangement or para jumbles, ordering of words in a sentence, cloze test, parts of speech, one word substitution, grammar. अब आपने इस लास्ट मंथ में अपने लिए एक टू डू लिस्ट बनानी है. इट शुड हैव दीज की एस्पेक्ट्स. सबसे पहले तो मेक अ टाइम टेबल फॉर योर सेल्फ. जितना भी अब टाइम रहता है, वॉट एवर टाइम यू हैव टिल 21st of April, बाइफरकेट इनटू वेरियस सेक्शंस. अपने टाइम टेबल में मेक स्लॉट्स फॉर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, रिविजन प्लान, डेली क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट्स. Secondly, emphasize on vocabulary section. The vocabulary section में we talk about synonyms, antonyms, idioms and phrases. तो ये कुछ questions हैं which you cannot go wrong with. Also add word meanings to this section. तो आप इसमें ऐसा कर सकते हैं कि आप डेली के you can do 20-25 synonyms, antonyms, idioms and phrases, and then on weekends you can revise whatever you have done during the weekdays. Next, grammar is very important for you. Nouns, adjectives, adverbs, prepositions, determiners. So you have to go through all of these topics. Reported speech, active and passive voice. तो उसके rules क्या है, उसकी application क्या है, एक पर्टिकुलर रूल की एक्सेप्शन क्या है. यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज बेसिक्स. These especially are very important for parts of speech questions. उसके लिए conjunctions, interjections, everything you need to know very properly. And this you need to do properly. आपको डिटेल में जाके प्रैक्टिस करनी होगी. For example, you can be asked a question that which kind of verb is it? Transitive verb, intransitive verb, what is it? एक बार आपका एक पर्टिकुलर टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, देन यू ऑल्सो सॉल्व क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू अ गिवन टॉपिक. एक टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करो एंड देन गो ओवर ऑल द टॉपिक्स ऑफ ग्रामर एंड सॉल्व देयर क्वेश्चंस. कंबाइंड वर्कशीट्स आप बाद में करिए, पहले आप सिर्फ टॉपिक वाइज वर्कशीट सॉल्व करो. रीडिंग हैबिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CDS पॉइंट ऑफ व्यू. तो आप जितना रीड करोगे उतना यू विल बी गुड विद योर वोकेबुलरी एंड यू विल बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड एंड अंडरस्टैंड कि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस में क्या बताया गया है एंड व्हाट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन इज आस्क्ड एंड हाउ विल यू थिंक लॉजिकली एंड हाउ विल यू आंसर लॉजिकली. Solving comprehensions on a daily basis, if not daily then you can allot days कि आज मैंने reading comprehensions वाला section करना है. Para jumbles, again para jumbles is a very time consuming process CDS एग्ज़ाम में. और अगर आप इसे पहले नहीं करके जाओगे, एक मंथ की प्रैक्टिस नहीं होगी आपकी, तो it is going to get very difficult for you to solve the questions there. Sentence rearrangement, जहाँ पे ordering of words is also asked. So these questions, it requires a fresh mind and it requires some concept clarity. तो अब जितने इसके questions solve करोगे उतना ही you will be confident while attempting in your papers. After you have done step 1, step 2, 3 and 4, the final step is that a full length test attempt करो, previous year question papers solve करो, mock test attempt करो, so that you know that out of 100 how many marks are you getting and आपके कितने negative answers होते हैं और कितने correct answers होते हैं.
अब रिवीजन टाइम पे आपके कितने नेगेटिव मार्क्स हैं विल डिसाइड योर रिस्क टेकिंग एबिलिटी इन द फाइनल एग्ज़ाम। विद एवरी मॉक टेस्ट यू गिव आपके नेगेटिव्स डिक्रीज होने चाहिए। Remember that your ultimate aim is to score more than 75 marks in your English paper. अब कुछ important points हैं that I want you to keep in your mind. The first one being your mock tests. इसे अपने टाइम टेबल में इनकॉर्पोरेट करो। लास्ट 10 डेज में एटलीस्ट 4 मॉक टेस्ट सॉल्व करो। अपने वीक एरियाज देखो, वर्क ऑन योर वीकनेसेस, नेगेटिव्स को रिड्यूस करो। चेक करो कि कितने यूजुअली नेगेटिव होते हैं और आप कितना रिस्क ले सकते हो इन द एग्ज़ाम कि आपके आफ्टर नेगेटिव भी 75 प्लस मार्क्स आए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, एटलीस्ट लास्ट 5 ईयर्स के पेपर्स सॉल्व करो। यू विल गेट एन आइडिया कि किस टाइप के क्वेश्चंस आर लाइकली टू बी आस्क्ड। दिस विल ऑल्सो बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। Daily vocabulary revision is very, very important. Like I said, synonyms, antonyms, word meanings, idioms and phrases, these can be asked directly or in the form of a sentence. Spelling errors के questions, daily revision से इसमें काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो। Grammar basics, nouns, pronouns, verbs, adjectives, adverbs, conjunctions, prepositions, interjections, इनकी types, tenses, reported speech, active passive voice, all is very very important. ये सब करने से parts of speech, spotting the error, these questions, close test, fill in the blanks, ये सारे sections आपके cover हो जाएंगे। अब एग्ज़ाम में यूल हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, और कॉन्फिडेंस सिर्फ अच्छी प्रिपरेशन से आएगा। मॉक टेस्ट में अपने एक्सपेरिमेंट्स करिए, फाइंड आउट योर स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स, स्ट्रॉन्ग एरियाज़ को इन्हांस करो और वीक एरियाज़ को एलिमिनेट, ब्रिंग नेगेटिव मार्क्स टू अ मिनिमम, और ये आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा कि आप कितने क्वेश्चंस का रिस्क ले सकते हो इन योर फाइनल पेपर। ट्राई करिए कि 120 में से आप 100 प्लस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए ही करिए, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर यू इफ़ योर मैक्सिमम आंसर्स आर करेक्ट। 100 इज़ लाइक अ मिनिमम फॉर यू टू अटेम्प्ट। अदरवाइज अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो यू कैन गो अबव 110, 115 एज वेल। बस याद रखिए कि जोश जोश में नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा नहीं करवानी है। ऑल्सो रिमेंबर, एग्ज़ाम से एक दिन पहले स्लीप टाइमली। इंग्लिश पेपर के लिए फ्रेश माइंड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज रीडिंग सेक्शन, पैरा जम्बल्स सब बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएंगे। एंड सिंस इंग्लिश फर्स्ट पेपर होता है, ये अच्छा हो जाए तो जीके और मैथ्स के लिए भी कॉन्फिडेंस मेंटेन्ड रहता है। सो बेस्ट विशेज़ फॉर योर प्रिपरेशन एंड योर एग्ज़ाम। और अगर आपको कोई और डाउट्स है, यू कैन रीच आउट टू अस ऑन आवर इंस्टाग्राम चैनल एंड थ्रू व्हाट्सएप।